हम रिश्तों से घिरे हुए हैं, पर कितनी तरह के रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हैं? क्या आपको कोई आइडिया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर इन आवर लाइव्स? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जैसे कि आप जानते हो कि हम इस चैनल में खुशियों के बारे में बात करते हैं, हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत के बारे में चर्चा करते हैं। इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ आवर रिलेशंस। सही मायने में देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में दो तरह के रिश्ते होते हैं, पहले से बने हुए रिश्ते और खुद से बनाए हुए रिश्ते। In broader sense, there are two types of relations in our lives, and those are predefined relations and self-defined relations. Predefined relations वो रिश्ते होते हैं जो पहले से परिभाषित रहते हैं, और self-defined relations वो क्या होते हैं? वो रिश्ते जिन्हें हम खुद परिभाषित करते हैं। पूर्व परिभाषित रिश्ते कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए आज हम इस दुनिया में हैं। Definitely the parents are the leading predefined relations, but the list includes a long range of options. ऐसे रिश्ते हमारे चाइल्डहुड और यूथ स्टेज में सक्रिय होते हैं, जबकि वो रिश्ते जिन्हें हम परिभाषित करते हैं वो हमारे जीवन के अगले भाग में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जिनको हम दुनिया के आने के बाद डिस्कवर करते हैं। Self-defined relations come in our lives as per our choices and preferences. Interestingly, the self-defined relations are active in maximum period of our life, called the second part. ये वो रिश्ते होते हैं जो जन्म के बाद बनते हैं, और ये हमारी पसंद और प्राथमिकताओं पे बनते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किसके साथ खेलना है, किसको अपना मित्र बनाना है। एक्चुअली बच्चा हो या बूढ़ा, ये रिश्ते हम खुद अपने पसंद और चॉइसेस से डिसाइड करते हैं। हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे मन को भाते हैं। Unknown persons meet for common purposes or background. Their nature, behavior, way of thinking, work strategy, or personal choice meets, and then understanding comes. Eventually, a dependency develops. So, friends, we all get two different families in life. One is a parental family and the other is in-law family. हमें जीवन में सभी को दो अलग अलग परिवार मिलते हैं। एक वो परिवार जिसमें हम पैदा होते हैं और दूसरा जहां हम शादी करते हैं। Apart from the in-laws, kids, friends, office, colleagues, business partners, project guides, teachers, office juniors, office seniors are developed on our self-identities. Educational life and work professions are the major sources of self-defined relations. Among the wide range of self-defined relations, life partner and friends are leading ones. जीवन साथी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित रिश्ते हैं। जीवन भर हमारे ज़रूरतों को पूरा कराने के अलावा वे हमारे सुख और दुख शेयर कर लेते हैं। Suppose I joined a new company and shifted to an unknown city. The office and city are completely unknown to me. Apart from a few office employees, nobody is known to me. But I started getting new associations in the office and outside. As the duration passes, I started knowing the teammates, department heads, security guards, and housekeeping staffs. I also started getting familiarity with the roads, markets, and shopkeepers in that area. Gradually, I became a credit customer of a few shops where I used to make cash transactions in my purchase. None of these people know my family members or relatives. They preferred my reliability and prepared to give me a certificate of trustworthiness. Each and every relation develops on our self-identity is self-defined. Then we get kids, friends, teachers, colleagues, and many others. It is tough to compare both types of relations because their roles are different in different stages of our life. Yes, we spend more time with the self-defined relations, but they are active in absence of predefined relations. But without the parental care, we would not be able to get our education and identity. माता पिता की देखभाल के बिना हम अपनी शिक्षा, पहचान और आत्मसम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके अभाव में आत्म परिभाषित रिश्ते हमें जीने के लिए प्रेरित कराते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से हम अपने रिश्तों को आगे दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, पर्सनल रिलेशंस एंड प्रोफेशनल रिलेशंस। व्यक्तिगत रिश्ते कभी भी
पेशेदार नहीं होते, लेकिन समय के साथ कुछ पेशेदार रिश्ते उनके निवेश के आधार पर व्यक्तिगत हो जाते हैं। ड्यूरेशन मेक्स देम टू फील फॉर ईच अदर। They start investing on themselves and a bond develops in between two unknowns. So, the professional relations are self-defined relations. These develop on our self-identity. Family history, economical background, living standard, or our religious priorities play a negligible role in the expansion of autonomous relationships. यह हमारी व्यक्तित्व, पसंद नापसंद, सेंस ऑफ ह्यूमर, सोचने का तरीका, ज्ञान, विचार, इन सब में आते हैं। वी यूजुअली चूज दीज रिलेशंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। समटाइम्स द इनिशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल साइड, समटाइम्स इट इज़ बोथ साइडेड। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड वे ऑफ मीटिंग। In interview, the employer never tries to find out the details of our parents or the number of siblings we have. Our personality, knowledge, work experience, attitude level, or the ways of representations decide our acceptability for that job or not. Sometimes profession gives us a mentor, a group of friend, or a life partner. इस तरह से हम अपने चैनल में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अपने लिए और अपनों के लिए थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पर हमारे रिश्तों में मिठास डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। वैसे इस चैनल में हम आपको रिश्तों के बारे में गहराइयों से समझाएंगे। अगर आपको रिश्तों के बारे में दिलचस्पी हो, इसके बारे में जानने में आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।